Good morning, students. Today we are going to discuss about the next topic of our this chapter, that is joints. What these joints are, ये joints होते क्या हैं? These are the structural arrangement of tissues. और इन arrangements की help से दो bones एक दूसरे के साथ connected होती हैं, joint होती हैं. So what these joints are? They are structural अरेंजमेंट ऑफ टिश्यूज और इनसे हमारी बोन्स एक दूसरे के साथ ज्वाइन करती हैं. नाउ दीज ज्वाइंट्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स डिपेंडिंग अपॉन हाउ मच मूवेबल दे आर, हाउ मच फ्लेक्सिबिलिटी मूवेबिलिटी दे आर गिविंग. सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट थ्री टाइप ऑफ ज्वाइंट्स डिपेंडिंग अपॉन देयर मूवमेंट के बेसिस पर वो कितनी मूवमेंट शो करते हैं, इस बेसिस पर हम जॉइंट्स को थ्री पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. द फर्स्ट टाइप ऑफ जॉइंट इज फाइब्रस और वी ऑल्सो ने से फिक्स्ड और इमूवेबल जॉइंट. दिस इज द फर्स्ट टाइप. The second type of joint is cartilaginous joint or slightly movable joint. Cartilaginous or slightly movable joint. And the third type of joint is synovial or freely movable. Synovial or freely movable joint. So these are the three type of joints which we are going to discuss. You can understand by the names that are given to them. Immovable means that is not going to move, no movement is happening in these joints. Slightly movable means that there is movement but that movement is restricted, only slight movement is there. And freely movable means they can easily move themselves. So let's take them one by one. The first one is fibrous or fixed immovable joints. ये वो joints हैं जो बिल्कुल भी move नहीं करते हैं, movement show नहीं करते हैं. ये जो joints हैं, इनकी जो bones हैं, उन bones के end में the end portion, suppose this is a bone and this end portion of the bone, this end portion of the bone is having, or you can say, I can say, suppose this is a joint. Over here one bone is there, the second bone is there, and in between these joints there is presence of white fibers. That means these are white fibers, they are present, means collagen is there, that is very strong and rigid. So due to the presence of these white fibers at the end of two bones, they are stick to each other and they are not going to move. And such a type of joints are known as sutures. So there will be no any type of movement seen between these bones. So these joints are completely fixed and they are not going to show any type of मूवमेंट. कहाँ देखने को मिलते हैं हमें ये इमूवेबल या फिक्स जॉइंट्स? जो हमारी स्कल है, वी टॉक्ड अबाउट द क्रेनियम. दिस क्रेनियम इज हैविंग बोन्स. ये जो बोन्स हैं, दीज आर हैविंग सूचर्स, मीन्स दीज आर टाइटली पैक्ड विद ईच अदर और इनमें कोई भी मूवमेंट नहीं होती है. सो द फर्स्ट एग्जाम्पल इज बोन्स ऑफ स्कल और यू कैन से क्रेनियम. That is an example of immovable joints. ये move नहीं करते हैं. दूसरा जो example है, that is with the teeth and maxilla, the jaw, upper jaw and teeth with the lower jaw. ये भी जो joints हैं ये कैसे होते हैं? Immovable joints होते हैं. So teeth attached with maxilla, again there is immovable joint, and the teeth attached with mandible. The lower jaw is again example of immovable joints.
सो ऑलवेज रिमेंबर ये जॉइंट्स बिल्कुल भी मूवमेंट शो नहीं करते हैं, यहाँ पर कोलेजन प्रेजेंट होता है जो इनकी मूवमेंट को रेस्ट्रिक्ट करके रखता है। कहाँ देखने को मिलते हैं हमें, हमारे जो क्रेनियम में बोन्स प्रेजेंट हैं वो सारी एक दूसरे के साथ इमूवेबल जॉइंट से कनेक्टेड हैं, और जो हमारा टिथ है वो हमारे अपर और लोअर जॉ के साथ भी इन्हीं इमूवेबल जॉइंट्स के साथ कनेक्टेड हैं। जो सेकेंड टाइप ऑफ जॉइंट्स हैं, these are cartilaginous और slightly movable। यहाँ पर थोड़ी बहुत मूवमेंट अलाउड होती है। यहाँ पर जो बोन्स प्रेजेंट हैं उन बोन्स के एंड पर प्रेजेंट होता है फाइब्रोकार्टिलेज, and this fibrocartilage is allowing some movement. Little bit of movement is possible because of the presence of fibrocartilage at the end of the bones. And where we are going to see these? The first example is, yesterday we talked about our pelvic girdle, और pelvic girdle में मैंने जब बताया था कि दो pubics जब जहाँ आके मीट करती हैं देयर दे आर गोइंग टू फॉर्म अ प्यूबिक सिम्फाइसिस, और प्यूबिक सिम्फाइसिस किससे मिलके बना है, क्या प्रेजेंट है, फाइब्रो कार्टिलेज प्रेजेंट है। सो दैट इज अ टाइप ऑफ स्लाइटली मूवेबल जॉइंट। प्यूबिक सिम्फाइसिस ऑफ प्यूबिस इज वन एग्जाम्पल। द सेकेंड एग्जाम्पल इज, हमारी जो वर्टिब्रल डिस्क हैं उनके बीच में जो हमने वर्टिब्रल कॉलम पढ़ा था, सो द वर्टिब्रे, इन बिटवीन द वर्टिब्रे इंटरवर्टिब्रल डिस्क आर प्रेजेंट, एंड दीज इंटरवर्टिब्रल डिस्क आर ऑल्सो मेड अप ऑफ फाइब्रोकार्टिलेज, सो दे आर गिविंग अ वेरी स्लाइट मूवमेंट टू आर वर्टिब्रे। So these intervertebral discs are present in between the vertebrae, and that is another example. Intervertebral disc, they are providing a slight movement to our vertebrae. So these are the examples of cartilaginous or slightly movable joints. The third one are synovial joint. We are going to discuss synovial joint in detail, plus we are also going to talk about the types of synovial joints that are present. Synovial joints are freely movable joints. They are प्रोवाइडिंग मूवमेंट, वो एक प्लेन में मूवमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं या एक से ज़्यादा प्लेन में मूवमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं। उन जॉइंट्स को हम क्या बोलते हैं, साइनोवियल जॉइंट्स और फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स। अगर हम बात करें कि बॉडी में साइनोवियल जॉइंट्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, सो दीज साइनोवियल जॉइंट्स आर प्रेजेंट इन दोज टाइप ऑफ बोन्स जो बोन्स एक दूसरे के साथ फिट होती हैं। मीन्स एक बोन में कैविटी प्रेजेंट होगी और इस कैविटी के अंदर जो दूसरी बोन है उसका सरफेस जाके फिट हो जाएगा। सो दीज टाइप ऑफ बोन्स आर प्रेजेंट विच आर गोइंग टू शो दीज साइनोवियल जॉइंट्स। सपोज दिस इज अ बोन that is having this cavity, and over here the structure of other bone is going to fit. It is going to fit inside this. So I am making it far away from this to understand the other parts also. So this is how in between these bones the synovial joints are going to occur. Now these bones, the end of these bones are having cartilage. So this region is having cartilage. I am showing with the blue pen. These are the end of two bones, and these end of two bones are having this cartilage, and it is known as articular cartilage, which is basically a hyaline cartilage that is present at the end of the two bones.
Now the cavity that is present between these two bones, the region that is present over here, this cavity is known as synovial cavity. So this synovial cavity is present between two bones. This is the region that is present between these two bones. Now there is a synovial membrane that is going to cover this structure. This synovial cavity is going to be covered by a membrane, and this membrane is known as synovial membrane. What is special about this synovial membrane? This synovial membrane is having secretory epithelial cells. यहाँ पर epithelial cells present हैं which are secretory in nature, जो secretion में involved होती हैं. So the synovial membrane is having secretory epithelial cells. So they are going to secrete, and what they are going to secrete? They are going to secrete a fluid, and this fluid will be filled in this synovial cavity. ये fluids रिलीज करती हैं और ये fluid कहाँ इकट्ठा होता है? इस synovial cavity में इकट्ठा होता है, and this synovial, the fluid is known as synovial fluid. So this is how the synovial joints are looking. दोनों bones के end पर articular cartilage present हैं, surrounded by synovial membrane. यहाँ की जो cells हैं they are secretory epithelial cells, जो एक liquid secrete करती हैं, fluid secrete करती हैं, that is synovial fluid, and this synovial fluid is going to accumulate in this synovial cavity. फंक्शन क्या है इस synovial fluid का? This synovial fluid is acting as a lubricant. ये दोनों बोन्स के बीच में फ्रिक्शन को डिक्रीज करता है, लुब्रिकेंट का फंक्शन करता है, एंड इट इज ऑल्सो न्यूट्रिटिव इन नेचर. कुछ साइनोवियल जॉइंट्स में स्मॉल सैक्स प्रेजेंट होते हैं. लिटिल सैक्स आर देयर, स्मॉल सैक्स दैट आर फिल्ड विद साइनोवियल फ्लूइड, एंड दे आर नोन एज बुर्से. सो सम ऑफ द साइनोवियल joints are having little sacs that are filled with synovial fluid, and they are known as bursae. Now this structure is capsulated. This synovial membrane will be covered by the membrane of bones. So I am showing another membrane. This is the membrane of the bone. So this membrane of the bone is also going to cover this structure, and the two bones are joined by the ligaments. We know that the connection between two bones is by ligaments, and the connection of the bones with muscles is by tendons. So this is how synovial joints are present. Now there are different types of synovial joints that are present. On what basis we are saying that type of joints are present? Depending upon which part of the body they are present. These synovial joints are going to be present in different parts of the body, plus they are showing different type of movements. So depending upon the parts on which they are present and the type of movement they are showing, we are going to talk about types of synovial joints. The first synovial joint is ball and socket joint. When we were talking about the skeleton system, then also I told you about ball and socket joint. कहाँ बनते हैं, पहले ये बात करते हैं कि ball and socket joint कहाँ present है. Ball and socket joint is present in our shoulder region. Means जो हमारा pectoral girdle है, this portion, the clavicle and scapula, they are going to form a cavity, that is glenoid cavity. और इस glenoid cavity के अंदर हमारी जो ये आर्म की बोन है, अपर आर्म की बोन है, ह्यूमरस, वो फिट होती है. दिस इज वन बॉल एंड सॉकेट जॉइंट. जो हमारा सेकेंड बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है वो बनता है हमारे पेल्विक ग्रिडल में, हिप ग्रिडल में. वहाँ पर जो एसिटाबिलम प्रेजेंट है, वापस से
जो हमारी हिप बोन है वहाँ पर एक डिप्रेशन प्रेजेंट होता है, दैट इज एसिटाबुलम, और उसके अंदर हमारी जो हिंड लिम है, हमारी जो लेग है, उसकी जो फीमर बोन है वो फिट होती है। सो दीज आर टू एग्जाम्पल्स ऑफ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट है। वन इज इन द पेक्टोरल ग्रिडल, एक पेक्टोरल ग्रिडल में प्रेजेंट है, कहाँ पर, जो हमारी ग्लिनोइड कैविटी है, इन विच ह्यूमरस फिट्स, ग्लिनोइड कैविटी में ह्यूमरस फिट होती है। एंड द सेकेंड वन इज इन द पेल्विक ग्रिडल वेयर एसिटाबुलम इज देयर and in which the femur fits, femur is going to fit. So these are two ball and socket joints. These are freely movable joints, that is giving almost 3-degree movement. 360-degree movement is provided by this ball and socket joint. While this is known as a ball and socket joint, it simply means a cavity is formed. Here a cavity is present and inside this cavity the head portion of a bone is going to fit. That's why it is called a ball and socket joint. Now the second type of joint that is present is gliding joint. ग्लाइडिंग ज्वाइंट बॉडी की उन बोन्स में प्रेजेंट है जो फ्लैट होती हैं। द बोन्स विच आर हैविंग फ्लैट सरफेस, दे आर हैविंग are going to show gliding joint, means they are sliding, they are rubbing with each other. These gliding joints are present in the carpals. हमने कार्पसल्स के बारे में बात की थी। ये कहाँ प्रेजेंट है, हमारी जो रिस्ट रीजन है वहाँ पर प्रेजेंट है, और हमारे जो फुट रीजन है, एंकल रीजन है, वहाँ टार्सल्स प्रेजेंट है। टार्सल्स 3 लेयर में अरेंज्ड हैं और यहाँ पर 2 लेयर्स अरेंज्ड हैं। सो दे आर गोइंग टू ग्लाइड on each other. So these carpals are having gliding joint and the tarsals are having gliding joint. So examples are carpals and tarsals. These are going to show gliding joints. The third one is hinge joint. हिंज जॉइंट कौन से जॉइंट्स होते हैं, हमारे बॉडी के वो पार्ट्स जो सिर्फ एक ही प्लेन में मूव करते हैं। सो हिंज जॉइंट्स आर अलाउिंग द मूवमेंट इन ओनली वन प्लेन। एक प्लेन में जो बॉडी पार्ट्स की मूवमेंट को अलाउ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम मूविंग माई दिस एल्बो पार्ट, देन दिस इज ओनली द वन प्लेन इन विच आई कैन मूव माई हैंड. दिस आर्म कैन बी मूव्ड इन दिस सिंगल प्लेन only. It cannot be bent backward, not sidewards also. So these are the hinge joints जो हमारे elbow region में present हैं. Same thing is with our knee also. We can move our leg in only one plane and our ankle also. So these are hinge joints. So example of hinge joints are, these are present in elbow region, in knee, ankle, plus one more example of this hinge joint is, जब हम एक्सियल स्केलेटन पढ़ रहे थे तब हमने क्या पढ़ा कि हमारे ब्रेन स्कल के नीचे 2 कॉन्डाइल्स प्रेजेंट होते हैं, ओसिपिटल कॉन्डाइल्स, और ये ओसिपिटल कॉन्डाइल्स कहाँ जाके फिट होते हैं, जो फर्स्ट वर्टिब्रा है एटलस, उसमें जाके फिट होते हैं और एक ही टाइप की मूवमेंट शो करते हैं, दैट इज़ द यस मूवमेंट। जब हम अपने सर को यस की फॉर्म में मूव करते हैं, दिस इज ओनली द वन प्लेन इन विच मूवमेंट इज फेवर्ड. सो दैट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ हिंज जॉइंट. सो बिटवीन द ओसिपिटल कॉन्डाइल्स एंड एटलस, दैट इज अ एग्जाम्पल ऑफ हिंज जॉइंट. So these are the 3 type of joints. Let's discuss about the rest of the joints also. The another type is, the 4th one is pivot joint.
Fourth is pivot joint. Just like the hinge joint की तरह this pivot joint is also going to show movement in one plane. लेकिन ये कैसे डिफरेंट है? पाइवोट जॉइंट में बेसिकली क्या होता है, वन बोन इज हैविंग अ प्रोट्रूबेंस, मीन्स देयर इज अ एक्सटेंडेड, एक बल्ज लाइक स्ट्रक्चर एक बोन में प्रेजेंट है और दूसरी बोन के अंदर डिप्रेशन प्रेजेंट है, दैट इज गोइंग टू फिट ओवर हेयर. जैसे हमने एटलस और एक्सिस में पढ़ा था, द एक्सिस वॉज हैविंग अ बल्जिंग स्ट्रक्चर, ओडेंटोइड प्रोसेस, और जो एक्सिस वॉज हैविंग ओडेंटोइड प्रोसेस और एटलस वॉज हैविंग द ओडेंटोइड कैविटी. तो एटलस कहाँ फिट हो जाती है? उस ओडेंटोइड प्रोसेस के अंदर फिट हो जाती है, दैट इज गिविंग अ मूवमेंट जिसे हम नो मूवमेंट बोलते हैं. सो दीज टाइप ऑफ जॉइंट्स आर नोन एज पाइवोट जॉइंट, जहाँ एक बोन में एक बल्ज प्रेजेंट है और वो दूसरी बोन के अंदर जाकर फिट हो जाता है. सो एग्जाम्पल इज द ओडेंटोइड प्रोसेस और सिंपली द जॉइंट दैट इज प्रेजेंट बिटवीन एटलस एंड एक्सिस. पाइवट जॉइंट और कहाँ प्रेजेंट है? हमारा जो हैंड है, जो दिस आर्म इज देयर, दैट इज हैविंग रेडियस एंड अल्ना. द जॉइंट बिटवीन द रेडियस एंड अल्ना is also a type of pivot joint. So this is the pivot joint. The next type of joint is a elliptical joint, that is ellipsoid joint. ये इलिप्सोइड जॉइंट्स कहाँ देखने को मिलते हैं? सी दिस इलिप्सोइड जॉइंट्स आर शोन, इट इज़ फाउंड इन दोज बोन्स जहाँ पर एक बोन के पास एक ओवल सरफेस प्रेजेंट है, एक ओवल कैविटी प्रेजेंट है, एक यू कैन से एक ओवल प्रोट्रूबेंस प्रेजेंट है, लाइक दिस वे अ बोन इज देयर दैट इज होविंग दिस ओवल स्ट्रक्चर, और दूसरे बोन के पास एक इलेप्टिकल कैविटी प्रेजेंट है जो इसके अंदर जाके इस तरीके से फिट हो जाएगा. नाउ दिस इज शोन बिटवीन द, हमारी जो मेटाकार्पल्स हैं, ये हमारी जो फेलेंजेस हैं, ये मेटाकार्पल्स और फेलेंजेस कैसा बोन जॉइंट शो करती हैं? दिस इलिप्सोइड जॉइंट. सो द जॉइंट दैट इज प्रेजेंट बिटवीन द मेटाकार्पल्स, जो हमारी पाम में प्रेजेंट है, एंड द फेलेंजेस, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ इलिप्सोइड जॉइंट्स. एक के पास एक इलेप्टिकल कैविटी है, उसके अंदर एक ओवल स्ट्रक्चर फिटेड है, दैट इज अ इलिप्सोइड जॉइंट. एंड द लास्ट जॉइंट इज द सैडल जॉइंट. अ सैडल जॉइंट, ये सैडल जॉइंट कहाँ प्रेजेंट है? ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे इलिप्सोइड जॉइंट है, लेकिन इलिप्सोइड जॉइंट के कंपैरिजन में ये ज़्यादा फ्री मूवमेंट शो करता है. दिस इज गिविंग मोर फ्री मूवमेंट टू द बॉडी पार्ट. और ये कहाँ प्रेजेंट है? जो हमारा थंब रीजन है, उसकी जो कार्पल्स हैं एंड मेटाकार्पल है, so that is showing more free movement as compared to these parts. This is known as another type of joint, that is saddle joint. So this saddle joint is present between the carpals and metacarpals of thumb. So these are the types of joints that are present in our body and the examples where these joints are present. Now we are going to talk about the last topic, that is disorders of muscular and skeletal system. हमारी बॉडी की मसल्स के और स्केलेटल सिस्टम के साथ कौन कौन से डिसऑर्डर्स रिलेटेड हैं, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट देम. सो द टॉपिक इज डिसऑर्डर्स ऑफ मस्कुलर and skeletal system. The first disorder which we are going to talk about, this is a very common disorder that is found in India and other countries also, that is arthritis.
आर्थराइटिस सिंपली मीन्स देर इज इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स. जॉइंट्स में जो इन्फ्लेमेशन होता है दैट इज लीडिंग टू arthritis. Now different individuals show different type of situations because and arthritis can be caused by different regions also. So that's why we are having different type of arthritis. For example, there is rheumatoid arthritis. One type of arthritis is rheumatoid arthritis. And how this rheumatoid arthritis is happening? This rheumatoid arthritis is caused because of the inflammation of synovial membrane. हमने synovial membrane की बात की थी जो synovial cavity को enclose करती है. When that synovial membrane is inflamed, inflammation of synovial मेम्ब्रेन. और साइनोवियल मेम्ब्रेन में क्या प्रेजेंट थी? सिक्रीटरी एपिथेलियल सेल्स प्रेजेंट थी जो साइनोवियल फ्लूइड को सिक्रीट करती हैं. सो दीज बिकॉज ऑफ इन्फ्लेमेशन ऑफ साइनोवियल मेम्ब्रेन द सिक्रीटरी एपिथेलियल सेल्स आर गोइंग टू अफेक्ट एंड दे आर लीडिंग टू मोर एंड मोर सिक्रीशन ऑफ फ्लूइड. इन्फ्लेमेशन की वजह से सिक्रीशन क्या होता है? इंक्रीज हो जाता है. और इस इन्फ्लेमेशन की वजह से कई बार कार्टिलेजेस भी देयर इज इरोजन ऑफ कार्टिलेजेस ऑल्सो. अब जब वहाँ पर सिक्रीशन बढ़ जाएगा, फ्लूइड इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा, दैट इज लीडिंग टू स्वेलिंग बिटवीन द जॉइंट्स एंड इट इज पेनफुल. एंड बिकॉज with the heat treatment this swelling and this painful situation can be relieved, or if there is more severe situation then the joints will be replaced. So this is how rheumatoid arthritis is present. The another one is the second type of arthritis is osteoarthritis. Osteoarthritis means when inflammation takes place or there is progressive erosion of articular cartilage. Articular cartilage कहाँ present थे? Bones के end पर present थे. They start degrading. There is progressive erosion of articular cartilage. So पहले क्या सिचुएशन थी? दैट दिस इज हाउ द बोन्स वर प्रेजेंट. बोन्स प्रेजेंट थे और यहाँ पर क्या प्रेजेंट था? आर्टिकुलर कार्टिलेज प्रेजेंट थे. सो दीज बोन्स आर नॉट गोइंग टू रब विद ईच अदर. बीच में साइनोवियल फ्लूइड प्रेजेंट था. व्हेन दीज आर्टिकुलर कार्टिलेजेस आर गोइंग टू इरोज, सो व्हेनेवर अ इंडिविजुअल इज गोइंग टू मूव, these two bones are coming in contact with each other. Again this will be a severe painful situation and the individual will be unable to walk. This is osteoarthritis. The second one is infectious arthritis. Infectious means that is caused by infectious organisms, that means microorganisms. The microorganisms like bacteria is there, virus is there. When these microorganisms are present in our blood, they are circulating in our blood, they will enter in the joints and they will cause infection in the joints. So the infectious arthritis is caused by the microorganisms that start infecting our joints. And the next one, the fourth type of arthritis that is present is gout, or you can say gouty arthritis.
जो गाउटी आर्थराइटिस है दैट इज कनेक्टेड विद आवर मेटाबॉलिज्म। जब हमारी बॉडी में मेटाबॉलिज्म प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर सकता है, देयर इज प्रॉब्लम इन द प्यूरिन मेटाबॉलिज्म। प्यूरिन को मेटाबोलाइज करने में जब प्रॉब्लम होती है, देन हेयर देयर इज रिलीज ऑफ यूरिक एसिड एंड सॉल्ट्स। देयर इज मोर एंड मोर रिलीज ऑफ यूरिक एसिड एंड सॉल्ट। अब ये यूरिक एसिड और सॉल्ट ब्लड में सर्कुलेट करता है एंड दिस स्टार्ट डिपॉजिटिंग बिटवीन द जॉइंट्स। और जो एक्सेस ऑफ यूरिक एसिड है वो जाके किडनीज में accumulate होता है, leading to the formation of stones. So because of the accumulation of this uric acid in between the joints, that condition is this gout, and it is again a highly painful situation in which movement of joints is not possible. So these are the type of arthritis. Now the second disorder is osteoporosis. This was the first one. The second one is osteoporosis. That simply means that bones are going to show pores. Pores means when the minerals and fibers will be removed out from the bones, then pores will appear. So what situation is there? यहाँ पर क्या होता है? The bones start losing their minerals and fibers from the matrix. Bones start losing minerals and fibers from its matrix. अब जितने ज़्यादा मिनरल्स और फाइबर्स यहाँ से निकल जाएंगे उतना ही ज़्यादा फ्रैक्चर के चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे. सो चांसेस ऑफ फ्रैक्चर increases in osteoporosis. और ये बेसिकली किन केसेस में देखने को मिलता है? व्हेन देयर इज डेफिशिएंसी ऑफ हॉर्मोन्स. लाइक हमने 10th क्लास में पढ़ा कि कैल्सीटोनिन, पैराथॉर्मोन ये क्या करते हैं? ये बोन्स में मिनरल्स और फाइबर्स के लेवल को मेंटेन करके, बोन्स और ब्लड के बीच में इनके लेवल को मेंटेन करके रखते हैं. व्हेन देयर इज डेफिशिएंसी ऑफ दीज हॉर्मोन्स, then there are more chances of osteoporosis, and this osteoporosis is also seen in increased age. जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है osteoporosis के चांसेस भी इंक्रीज होते जाते हैं. The another disorder is rickets or it is known as osteomalacia, and if it is in younger age it is known as rickets. So osteomalacia simply means that the bones are weak. और bones किस वजह से weak हैं? Because there is deficiency of calcium and phosphorus. Deficiency of calcium and phosphorus, and because of their deficiency there is weakening of the bones. Again there are more chances of fracture. It can be because of the deficiency of vitamin D. Another disorder is that is related to the bursae, that is bursitis. When I was talking about synovial joint, तब मैंने बात की कि छोटे छोटे सैक्स प्रेजेंट होते हैं which are filled with synovial fluid. When there is these sacs are known as bursae, and when there is inflammation in these sacs, that condition is known as bursitis. This is also one of the disorder that is related to the skeletal system. Now the next disorder that is related to the skeletal system is dislocation. Dislocation, whenever an individual fall or there is more pressure on the joints, किसी भी physical pressure की वजह से, गिरने की वजह से, what happens? Displacement takes place in the
कार्टिलेज। जो आर्टिकुलर सरफेस है, आर्टिकुलर सरफेस कहाँ प्रेजेंट है, जो बोन के एंड है वहाँ पर आर्टिकुलर सरफेस प्रेजेंट है। देयर इज डिस्प्लेसमेंट इन दैट आर्टिकुलर सरफेस, और इस डिस्प्लेसमेंट की वजह से कई बार मसल्स, नर्व्स और यू कैन से दैट लिगामेंट्स आर गोइंग टू ब्रेक। देयर इज प्रॉब्लम इन द लिगामेंट्स, और उसको हम क्या बोलते हैं, डिसलोकेशन बोलते हैं। सो डिसलोकेशन इज डिस्प्लेसमेंट in articular surface which can also affect ligament, और इस डिस्प्लेसमेंट की वजह से कौन अफेक्ट होता है, लिगामेंट्स भी अफेक्ट हो सकते हैं। दैट इज ऑल्सो अ सिवियर पेनफुल सिचुएशन जिसमें इंडिविजुअल को मूव करने में प्रॉब्लम होती है। द नेक्स्ट वन इज स्प्रेन एंड स्ट्रेन। स्प्रेन एंड स्ट्रेन। स्प्रेन दोनों में से अगर हम बात करें, द स्प्रेन इज मोर सीवियर सिचुएशन एंड दैट इज बिकॉज ऑफ ट्विस्टिंग। मसल्स के ट्विस्टिंग की वजह से देयर कैन बी प्रॉब्लम इन लिगामेंट्स, टेंडन्स ऑल्सो, यहाँ पर ब्लड वेसल्स और नर्व्स भी अफेक्ट हो सकती हैं। दैट इज स्प्रेन। और स्ट्रेन क्या है, स्ट्रेन भी ट्विस्टिंग की वजह से या डिस्प्लेसमेंट, देयर विल बी स्ट्रेचिंग और ट्विस्टिंग, लेकिन ये ज़्यादा सीवियर नहीं है। स्प्रेन इज मोर सीवियर सिचुएशन दैट कैन इफेक्ट द लिगामेंट्स, द नर्व्स, द ब्लड वेसल्स और द tendons also. So these are because of twisting and stretching. Now another disorder that is related is, that is number, this was number 6, number 7, and the number 7 is Paget's disease. What this Paget's disease is? सी जो बोन फॉर्मिंग सेल्स होती हैं हम उनको क्या बोलते हैं, ओस्टियोब्लास्ट बोलते हैं, और जो बोन डिग्रेडिंग सेल्स होती हैं दे आर नोन एज ओस्टियोक्लास्ट। दीज आर द बोन रीएब्जॉर्बिंग सेल्स। तो पेजेट्स डिजीज में क्या होता है, दीज ओस्टियोब्लास्ट्स दे स्टार्ट डूइंग मोर फंक्शन एंड दे स्टार्ट रीएब्जॉर्बिंग द बोन्स। अब जब ये बोन्स को रीएब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देंगी तो बोन्स क्या होंगी, कहीं से ज़्यादा थिक, कहीं से कम थिक। जहाँ से रीएब्जॉर्प्शन स्टार्ट होगा वहाँ से थिकनिंग कम होती जाएगी। सो सिचुएशन विल बी देयर इज अनइवन थिकनिंग इन द बोन्स, और रीएब्जॉर्प्शन की वजह से बोन्स कैसी हो जाती हैं, वीक हो जाती हैं, और इनके ब्रेकेज के चांसेस बढ़ जाते हैं। दैट इज द कंडीशन दैट इज अकरिंग इन द Paget's disease. The another disorder is muscular dystrophy. मस्कुलर डिस्ट्रॉफी और बाकी के जो डिसऑर्डर्स हैं उनमें डिफरेंस है, बिकॉज मस्कुलर डिस्ट्रॉफी एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। किसकी वजह से मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होता है, द मस्कुलर डिस्ट्रॉफी इज बिकॉज ऑफ नॉट फंक्शनिंग ऑफ अ protein that is dystrophin. There is a gene present in the DNA और वो जीन किसके लिए कोड करता है, डिस्ट्रोफिन प्रोटीन के लिए कोड करता है। जब मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की कंडीशन में ये डिस्ट्रोफिन प्रोटीन फंक्शन नहीं करता है, इसकी डेफिशिएंसी होती है। नॉर्मल कंडीशंस में डिस्ट्रोफिन क्या करता है, ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम रिलीज करवाता है, और हमें पता है कि मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए क्या चाहिए, कैल्शियम आयंस आर रिस्पॉन्सिबल। सो व्हेन देयर इज डेफिशिएंसी ऑफ डिस्ट्रोफिन प्रोटीन, दीज कैल्शियम आयंस आर नॉट गोइंग टू रिलीज, और कैल्शियम आयंस की डेफिशिएंसी की वजह से मसल कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता है, मसल कॉन्ट्रैक्शन विल स्टॉप। और ये कैल्शियम आयन की कंसंट्रेशन कहाँ इंक्रीज हो रही है, कंटिन्यूसली सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कंसंट्रेशन इंक्रीज होती जाती है, एंड बिकॉज ऑफ दिस इंक्रीज्ड कंसंट्रेशन देयर इज ब्रेकडाउन ऑफ एक्टिन एंड मायोसिन।
किसका ब्रेकडाउन स्टार्ट हो जाता है, एक्टिन और मायोसिन ब्रेकडाउन होना स्टार्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से इंडिविजुअल की मसल्स, यू कैन से वो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं होती हैं, मसल्स फंक्शन नहीं करती हैं और अर्ली एज तक ही इंडिविजुअल इज़ नॉट एबल टू मूव, क्योंकि मसल्स मूव नहीं करेंगी तो इंडिविजुअल की बॉडी भी मूव नहीं करेगी। सो दिस इज मस्कुलर डिस्ट्रोफी। जीन कहाँ प्रेजेंट होता है इस मस्कुलर डिस्ट्रोफी का? इट इज़ प्रेजेंट ऑन द शॉर्ट आर्म ऑफ एक्स क्रोमोसोम। एक्स क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट होता है। तो एक्स क्रोमोसोम के ऊपर जो जीन्स प्रेजेंट होते हैं, अगर वो किसी जेनेटिक डिसऑर्डर के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, सो यू शुड नो वन थिंग अबाउट इट। हमें पता है कि फीमेल्स में 2 एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट हैं और मेल्स में 1 एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट है। तो अगर मेल्स में 1 एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट है और वहीं पर डिस्ट्रोफिन काम नहीं कर रहा है, देन दिस इंडिविजुअल, दिस इज शोइंग द साइन ऑफ that the gene of dystrophin is not functioning. This individual is going to suffer from muscular dystrophy. लेकिन अगर यही केस फीमेल्स में है, then what is happening? This is the gene that is defective, but still 1 X chromosome is there that is functioning normally. So this individual, this female is not going to suffer from muscular dystrophy, but it is going to act as a कैरियर। कैरियर मीन्स इसके पास एक डिफेक्टेड जीन है जिसको ये अगली जनरेशन में इनहेरिट कर सकती है, लेकिन ये डिजीज्ड नहीं है क्योंकि इसके पास अभी भी एक फंक्शनल कॉपी जीन की प्रेजेंट है। तो हेट्रोजाइगस सिचुएशन में फीमेल्स कैरियर होती हैं और मेल्स कैसे होते हैं? डिजीज्ड होते हैं। नाउ द नेक्स्ट वन इज मिस्थेनिया ग्रेविस। नेक्स्ट डिसऑर्डर इज मिस्थेनिया ग्रेविस। मिस्थेनिया ग्रेविस सिंपली मीन्स कि प्रॉब्लम कहाँ है? द प्रॉब्लम इज इन द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन मीन्स जहाँ नर्व्स मसल्स को मैसेज कन्वे करती हैं, द पॉइंट वेयर नर्व्स ऑफ आवर बॉडी आर इन कॉन्टैक्ट, कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद द मसल्स। जब ये जंक्शन काम नहीं करेगा, दैट मीन्स नर्व्स से सिग्नल कहाँ नहीं आएगा? मसल्स के पास सिग्नल नहीं आएगा, और अगर मसल्स के पास सिग्नल नहीं आएगा तो मूवमेंट कंट्रोल नहीं होती है। दिस इज लीडिंग टू पैरालिसिस, फटीग, वीकनेस, एंड द लास्ट one is tetany. Tetany means there is continuous contraction of muscles. Muscles का there is rapid contraction of muscles. That condition is tetany. So this is all about our chapter, that is locomotion and movement. Next time we will start with our next chapter.